I, Professor Bhavish Kumar Chauhan, once again welcome you in the course code KEE 302. In last discussion, we were discussing regarding the equivalent diagram of current transformer, circuit diagram of current transformer, different notations. So we will take off from there only. हम वहीं से टेक ऑफ लेते हुए शुरुआत करते हुए आगे विस्तार से बर्डन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में चर्चा करेंगे और जो मुख्यतः आगे आने वाले आधे घंटे में हमारी चर्चा होगी वो इन पर केंद्रित होगी. दीज विल बी द पॉइंट्स वेयर वी विल बी फोकसिंग like introduction, the burden on instrument transformer, the errors in current transformer, okay, the characteristics of CTs, that is current transformer, sources of error in measurements, okay, particularly in context of instrument transformer, and then of course conclusion. So these are the photographs that you saw that in fact proves that there is variety of shapes and sizes, but one thing is common in current transformer, that the primary line is connected to the main line, okay, which is carrying the full current. So primary is in series with the main line, and the secondary it is where we connect the ammeter or maybe the current coil of different instruments such as wattmeters or maybe relay. So these are also various types of current transformer. Now you are very familiar with these diagrams. This is also what you saw in the previous. So these are all current transformer. So if you see it in substations, you can confirm it for yourself that this is the current transformer. Okay, and these were the notations since we will be discussing it again and involving this in our discussion. So for example, R stands for resistance, so S stands for secondary. Similarly, X reactance, and it stands for secondary S, and then RE, that is a resistance of external burden. This is a very important term, REXC. We will see it will connect to the delta, that is the angle which really influence the operation. So resistance of external burden, E stands for external burden, that is a resistance of the meters, current coils including the leads, and XE reactance of the external burdens, okay, that is reactance of meters, current coils and including the leads. EP, that is induced voltage in primary, induced voltage in secondary. N is the number of primary winding turns and NS is the number of secondary winding turns. So since we will be again involving these terms, that is why we are taking a brief review of this. And then Vs is the voltage at secondary winding terminals. You are very familiar with this. Is the secondary winding current, Ip is the primary winding current, phi is the phase angle of transformer, and delta is the angle between, because we will be using this term very often. So it is the angle between secondary winding induced voltage, means that is Es, and the secondary winding current, that is Is. So it is the angle between Es and Is. So please keep it in mind. इस बात को बहुत ध्यान से रखिए कि डेल्टा क्या है. डेल्टा जो है वो एंगल है between primary this secondary voltage, okay, secondary winding voltage, induced voltage, that is Es, and the secondary winding current, that is Is. So it is the angle between Es and Is, okay, whereas phi is the phase angle of the transformer. And then this is also phase angle of this delta is the phase angle of the burden including the impedance of the secondary winding, tan inverse XS this and XC terms, and then RS plus RE and XS plus SE. This is a very popular term. So delta, this is also one very important notation that you must remember, that is a phase angle of secondary winding load circuit, okay. So secondary winding load circuit of the external burden, we will be also using this term later on. So tan, that is equal to tan inverse XC upon RE. XC is the external burden reactance, external burden circuit का जो reactance है वो है divided by the resistance of that external burden, because if you recall this is XC and RE, okay. So that is external burden that you have seen here, okay. So and IM and I naught, you know these component of the no load current, and IE is the loss component, and whereas IM is the magnetizing component. Alpha is the angle between exciting current IO, okay, which is also known as IO is also known as the no load current. So this alpha is the angle between exciting current I naught and the working flux phi. So that is also one angle which we usually discuss in the phasor diagram, and it is definitely that gives you an effect of
the no load in terms of in terms of the angle, because no load current eventually decides that how much is the angle. If it is really significantly comparable with the load current, of course the phi is also proportionally changed. Now n is also known as the turns ratio, which is the number of secondary winding turns divided by number of primary winding turns. Okay, so these things you have basically even studied in the first year also. Now burden, that is what we are now going to familiarize ourselves. It is convenient to express load across the secondary winding terminals. ओके अगर हमको सेकेंडरी वाइंडिंग टर्मिनल पे लोड को एक्सप्रेस करना है, डिफाइन करना है, तो व्हाट विल वी डू? देन इट इज बेसिकली डिफाइंड एज द आउटपुट इन वोल्ट एम्पियर्स. यू आर फैमिलियर विद वोल्ट एम्पियर्स, दैट इज वी ए. ओके, द वोल्ट एम्पियर्स एट द रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज. सो बेसिकली एट रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज कितना आउटपुट है. ओके, आपको मालूम है रेटिंग क्या है सेकेंडरी की, और उस पर कितना आउटपुट है जो कि आप वोल्ट एम्पियर में मेजर कर रहे हैं. दैट विल डिफाइन द basically load which is across the secondary winding terminal. And this is also this rated burden, this which we are defining, what we are defining volt ampere. Okay, at rated secondary voltage. So mind these two terms are very important: output in volt ampere. Okay, and this we are doing at what level? We are doing it at a rated secondary winding voltage. Okay, and this is what we call the burden, and this rated burden is volt ampere loading. So another way of defining it in a simple way, एक और तरीके से हम आसानी से इसको सरल भाषा में परिभाषित कर सकते हैं, वो ये है कि बेसिकली वोल्ट एम्पियर लोडिंग है विच इज परमिसिबल विदाउट एरर एक्सीडिंग द लिमिट्स ऑफ पर्टिकुलर क्लास ऑफ एक्यूरेसी. यानी कि जिस पर्पस के लिए आप इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को, उसकी एक परमिसिबल एक्यूरेसी रेंज होगी. ओके, यू नो गारंटेड एरर, तो कितना मैक्सिमम प्लस माइनस आप एरर अलाउ कर सकते हैं. तो अगर उसको वॉयलेट किए बगैर, यानी कि उतने से ज़्यादा वो एरर नहीं देना चाहिए इंस्ट्रूमेंट. ओके, क्योंकि याद रखिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हम मेजरमेंट पर्पस के लिए कर रहे हैं. ओके, एक तो मेजरमेंट है, दूसरा प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ भी अगेन वी डू द मेजरमेंट्स. सो inadvertently we are using the measurement method while employing these instrument transformer. So basically this burden is also can be defined as the volt ampere loading which is permissible. Okay, so this is the burden which is permissible. The volt ampere loading is basically, you can say, is the burden. Okay, which gives you an idea that what is the permissible limit in in which you can operate without errors exceeding the limits फॉर ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ एक्यूरेसी. यानी कि आपको एक टॉलरेंस रेंज में ही काम करना है एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, गारंटेड एरर को एक्सीड नहीं करना है. तो उसमें रहते हुए कितना आप वोल्ट एम्पियर लोडिंग लगा सकते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द रेटेड बर्डन. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल अगर सेकेंडरी वाइंडिंग बर्डन को, आपको टोटल बर्डन को डिफाइन करना है, तो हाउ विल यू इवेल्युएट? यू विल इवेल्युएट बाय सेकेंडरी वाइंडिंग इंड्यूस्ड वोल्टेज. Okay, what is that? That is ES. So that is basically ES square. Okay, and divided by, because this is a square term, divided by the impedance of secondary winding circuit. तो आप impedance of secondary winding circuit को लेंगे जिसमें कि impedance of secondary winding भी included है और बाकी अदर पैराफेरनेलिया जो उसमें और भी तामझाम लगा हुआ है secondary winding circuit में. Okay, इम्पिडेंस के अलावा वो भी आप इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये टोटल की बात हो रही है. तो टोटल की बात का मतलब है कि इम्पिडेंस ऑफ टोटल वाइंडिंग सर्किट including winding impedance also. Okay, so this is about total is the keyword. तो जो भी सेकेंडरी साइड पे जितने भी सर्किट में बेसिकली कंपोनेंट्स हैं, उन सारे कंपोनेंट्स का टोटल इम्पिडेंस आप ले लेंगे, उसको आप क्या रखेंगे डिनोमिनेटर में. यू विल कीप इट इन द डिनोमिनेटर, वेयर एज इन द न्यूमिनेटर यू विल पुट इट एज सेकेंडरी वाइंडिंग इंड्यूस्ड वोल्टेज. सो दैट इज ई स्क्वायर अपॉन, यू कैन से कि सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पिडेंस जेड एस टोटल. तो यहाँ आप जेड एस टोटल को ले लेंगे. ओके, बिकॉज ये तो मालूम ही होगा आप, क्योंकि जब आप बर्डन को डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये इसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन इम्पिडेंस का ही डायमेंशन है. सो दैट विल बी इन ओम. सो इवेंचुअली न्यूमिनेटर में जो है वो वोल्टेज स्क्वायर आएगा और डिनोमिनेटर में
इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस आएगा, तो यहाँ पे क्योंकि एसी सर्किट की बात कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली सारा ऑपरेशन अल्टरनेटिंग करंट में ही होगा, तो इट विल बी ई एस स्क्वायर अपॉन जेड एस टोटल. ओके, another way of defining it is secondary winding current का square, so that is IS square. This is another way, IS square multiplied by the impedance of secondary winding including secondary winding. वाइंडिंग के अलावा भी बाकी जो भी कंपोनेंट हैं, क्योंकि आपने इक्विवेलेंट डायग्राम में देखा कि आप इम्पिडेंसेस भी रखते हैं और ऑब्वियसली आपका कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी रहेगा, अमीटर होगा या कोई रिले सर्किट होगा, तो सारा का सारा जो भी सेकेंडरी पे कंपोनेंट लगा हुआ है, that's impedance will be taken. So it will not be merely winding resistance. Even the external component or load which you are connecting, however small it may be, you have to include that also. So that will be IS square upon ZS total. तो अगर करंट लेंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे और अगर वोल्टेज लेंगे तो यहाँ पे डिवीजन करेंगे ZS से. Okay, that is how you calculate the total secondary winding burden. Okay, now next secondary winding burden due to load. अब केवल वो तो टोटल था, लेकिन अगर खाली ड्यू टू लोड निकालना है तो क्या करेंगे आप? इन दैट केस यू विल यूज सेकेंडरी वाइंडिंग इंड्यूस वोल्टेज, दैट इज अगेन ई एस स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ केवल सेकेंडरी लोड ऑन सेकेंडरी वाइंडिंग लेंगे. सो द इम्पिडेंस ऑफ लोड, सो हियर ओनली लोड इज टेकन, नॉट द सेकेंडरी वाइंडिंग. ओके, सो ओनली लोड इज टेकन. सो दिस इज नॉट ए टोटल, दैट इज ओनली सेकेंडरी वाइंडिंग. सो दैट इज यू कैन से वाइंडिंग इम्पिडेंस. ओके, सिमिलरली अगर करंट का एक्सप्रेशन ले रहे हैं तो इन केस ऑफ करंट यू विल टेक आई एस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड डब्ल्यू जी. ओके, so there you will multiply by the impedance. So if you are taking total burden, then you will take the total circuit which also include the load as well as winding circuit impedance in previous formula, but here you will only involve the load. So when you are, because we are calculating it only for load, तो वहाँ पे क्या था, लोड भी था और वाइंडिंग सर्किट भी था. यहाँ क्या है, यहाँ केवल लोड को लेंगे आप. ZS को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो you will only take the load. Now this is phasor diagram that we have discussed. IP, this is a primary. Okay, और यहाँ पे एक जो ध्यान देने वाली बात है कि आप देखिए यहाँ जो IS है उसको टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई किया गया है और उसको रिवर्स किया गया है, और फिर देखिए IP के साथ उसको इंटरलेट किया गया है. या ये आई नॉट है, नो लोड करंट है, तो ऑटोमेटिकली जब ये NIS को आई नॉट से आप ऐड करेंगे, ओके, NIS को आई नॉट से ऐड करेंगे तो यू विल गेट दिस रिजल्टेंट प्राइमरी, जो कि आपके सेकेंडरी के रेफरेंस में ओके आपने ऐड करके बनाया है. या VS में आपने ड्रॉप्स को ऐड किया है और ड्रॉप्स के बाद आपको इवेंचुअली ये मिल गया है IS, और ये जब आप V के रेफरेंस में एडिशन करेंगे तो ये इसके पैरेलल में लेंगे दिस IS, क्योंकि ये जो IX और ये RX है ये इसके प्रोपोर्शनल होगा. तो ये डिस्कशन आप फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं. फेजर डायग्राम करंट के रेफरेंस में आप मूव करते हैं, सो दैट वी हैव ब्रीफली डिस्कस. नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये ध्यान देने वाली बात है. इस पर शॉर्ट न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं और बड़े न्यूमेरिकल में भी इनका इस्तेमाल करते हैं. वन इज द रेशियो एरर. रेशियो एरर इज डिफाइंड एज परसेंटेज रेशियो एरर. तो एक तो परसेंटेज रेशियो के रेफरेंस में अगर परसेंटेज नहीं है तो आप 100 को एलिमिनेट कर देंगे. तो क्या है रेशियो एरर? रेशियो एरर इज द नॉमिनल रेशियो, ओके, माइनस एक्चुअल रेशियो डिवाइडेड बाय एक्चुअल रेशियो. ये नॉमिनल रेशियो को आप KN से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस R, ओके, डिवाइडेड बाय R. व्हाट इज R? R इज द एक्चुअल रेशियो. R इज द एक्चुअल रेशियो. तो अगर परसेंटेज एरर नहीं लेना है तो आप 100 को इग्नोर कर देंगे. यू विल eliminate the term of 100. But if you have to calculate the percentage ratio error, then eventually you have to multiply it with the 100. Now phase angle error. What is phase angle error? Phase angle error is basically that is a formula. Theta is equal to 180 upon pi. Okay. यहाँ आपने पाई रेडियंस में लिया हुआ है, ये डिग्री में लिया हुआ है. Then IM cos delta. What is IM? IM is the magnetizing component of no load current. And what is IE? IE is the loss component of the no load current. तो आप यहाँ देख रहे हैं IM के साथ cos डेल्टा आएगा, ओके, और IE के साथ sin डेल्टा आएगा, ओके. एंड देन दिस इज NIS. N is the turn ratio and IS is the secondary winding current. तो ये फॉर्मूला याद कीजिए, ये काम आएगा, क्योंकि अगर आपको फेज एंगल एरर कैलकुलेट करनी है तो अगर आपको IM दिया हुआ है, if IM is given, डेल्टा इज ऑल्सो गिवन, IE is also given, ओके,
और आई नॉट इज गिवन, देन आई नॉट से भी आप कॉस डेल्टा और यानी कि आई एम और आई को निकाल सकते हैं आई नॉट से भी, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, कितना फेज एंगल दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के लिए। और यहाँ एन आई एस को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एन अगर गिवन है आई एस, तो इफ ऑल रेस्ट वैल्यूज आर गिवन टू यू, देन बाई सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस फॉर्मूला you can calculate the phase angle error. Okay, so this is 180 by pi im cos delta minus I sin delta, remember this, divided by n is, and the result you will get will be in the degree. Okay, now characteristics of current transformer. The first of all, these are the four major effect. इसमें भी आप कह सकते हैं कि primarily 3 are influential. Fourth, you must be sure of that it is not a major factor. We will discuss briefly about these things, and the effect of power factor of secondary winding burden on errors और particularly ratio error. तो क्या पावर फैक्टर का इफेक्ट है, यानी कि पावर फैक्टर से ये इन्फ्लुएंस होता है. ओके, देन इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग करंट, यानी कि आईपी से भी ये इन्फ्लुएंस होता है. ओके, क्या इन्फ्लुएंस होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर. तो यानी कि एक पावर फैक्टर से इन्फ्लुएंस होगा, दूसरा आपके आईपी से इन्फ्लुएंस होगा, देन चेंज इन सेकेंडरी वाइंडिंग सर्किट बर्डन, जो अभी हमने सेकेंडरी वाइंडिंग सर्किट बर्डन की बात की थी, तो उससे भी ये, जो कि वोल्ट एम्पियर लोडिंग के रेफरेंस में आता है, उससे भी ये इम्पैक्ट होगा. और चेंज इन फ्रीक्वेंसी से भी इम्पैक्ट होता है, बट इन अ लिमिटेड वे. ओके, सो दैट्स नॉट ए मेजर फैक्टर, बट यस इट डज इन्फ्लुएंस, एंड वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ. तो इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर, तो इफेक्ट ऑफ आफ्टर पावर फैक्टर में क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट. द कंसेप्ट इज दैट फॉर ऑल इंडक्टिव बर्डन्स, ओके, इनफैक्ट अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड देखें तो मेजोरिटी ऑफ द बर्डन्स आर, दे आर मोर ऑफन देन नॉट आर इंडक्टिव बर्डन्स. सो ऑल इंडक्टिव बर्डन्स दैट इज ऑन सेकेंडरी वाइंडिंग करंट. जब भी इंडक्टिव बर्डन होगा तो ये ध्यान रखिएगा कि आई एस जो होती है वो लैग करती है ई एस से. ये हमेशा है, फर्स्ट ईयर से भी डिस्कशन देखा हुआ कि करंट जो है इंडक्टिव लोड में क्या करती है, लैग करती है, और कैपेसिटिव लोड में क्या है, करंट लीड करती है, अगर आपने वोल्टेज वेक्टर को रेफरेंस लिया हुआ है. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर इफ इट इज सफिशिएंटली कैपेसिटिव, देन आई एस लीड्स ई एस. व्हाट इज आई एस, आई इज द सेकेंडरी वाइंडिंग करंट, एंड व्हाट इज ई एस, इट इज द इंड्यूस्ड सेकेंडरी वोल्टेज. तो अगर इंडक्टिव है तो क्या है, आई एस जो है वो क्या करेगी, लैग करेगी. तो इंडक्टिव है, लैगिंग पावर फैक्टर, दैट यू अंडरस्टैंड. तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा. तो आप ये देखिए कि डेल्टा अगर लैग कर रहा है तो उसमें केस में क्या है, पॉजिटिव. ओके, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं इस समय, हम रेशियो के एरर्स के रेफरेंस में शुरुआत में बात कर रहे हैं. तो यहाँ देखिए ये पॉजिटिव है. ओके, ये पॉजिटिव रहेगा सब्सटेंशियली. उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ये दिस इज पॉजिटिव. सो अंडर दीज कंडीशन द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्न रेशियो. तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा उस केस में, जबकि आपका इंडक्टिव है. ओके, बट फॉर बर्डन विच आर सफिशिएंटली कैपेसिटिव, लेकिन जहां पर जो है वो सफिशिएंटली कैपेसिटिव है, तो उस केस में क्या है, ये नेगेटिव जाएगा. ओके, अगर कैपेसिटिव है तो यू कैन सी व्हेन द डेल्टा, देन डेल्टा विल बी नेगेटिव. एंड अंडर दीज कंडीशन द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो डिक्रीजेज एंड बिकमिंग लेस देन द टर्न रेशियो फॉर वैल्यूज ऑफ डेल्टा अप्रोचिंग -90 डिग्री. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे -90 डिग्री की तरफ ये जा रहा है, ये नेगेटिव ही है. कैपेसिटिव वाले केस में नेगेटिव है, और इट इज लेस देन, इट इज लेस. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव है रेशियो एरर जो है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है. और जैसे नेगेटिव की -90 की तरफ ये बढ़ रहा है, तो आप देख रहे हैं ये स्टेबलाइज है आगे. दिस इज अबाउट द रेशियो, दिस इज अबाउट द रेशियो. ओके, नाउ देयर इज अनदर कंसेप्ट दैट इज रिगार्डिंग फेज एंगल, की फेज एंगल एरर पे क्या इन्फ्लुएंस आएगा पावर फैक्टर का. दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. वी फाइंड दैट फॉर इंडक्टिव बर्डन्स फेज एंगल थीटा इज पॉजिटिव फॉर स्मॉल वैल्यूज. तो जब स्मॉल वैल्यूज, यहाँ पे आप देखिए थीटा के बारे में बात हो रही है कि यहाँ ये जो डेल्टा है, व्हेन दिस इज फॉर थीटा, दिस इज फॉर थीटा, ये सेकंड ग्राफ इज फॉर द थीटा. सो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, तो फेज एंगल जो थीटा है वो पॉजिटिव होगा स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल्टा के लिए. यहाँ पर स्मॉल वैल्यूज है, धीरे धीरे डेल्टा क्या है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे डेल्टा बढ़ रहा है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है. लेकिन अगर आप इस डेल्टा को और फर्दर बढ़ाते चले जाएंगे -90 डिग्री की, पॉजिटिव 90 डिग्री की तरफ, तो आप देखेंगे कि ये क्या होगा, थीटा विल गो इनटू नेगेटिव. So that is a very important phenomena. So here you are seeing, because this graph, second graph is for theta. तो आप ये देख रहे हैं कि शुरुआत में पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप -90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं, ये π/2 है, दिस इज प्लस π/2 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि +90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं,
तो क्या होगा, बट इट बिकम्स नेगेटिव एज द सेकेंडरी बर्डन बिकम्स मोर इंडक्टिव एंड डेल्टा अप्रोचेस टुवर्ड्स 90 डिग्री। तो जब डेल्टा 90 डिग्री की तरफ अप्रोच कर रहा है तो आप ये देख रहे हैं कि ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। पहले ये पॉजिटिव था, तो स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा के लिए थीटा क्या है, पॉजिटिव। बट ये जब डेल्टा और फर्दर इंक्रीज किया, तो फर्दर इंक्रीज करने पे यानी कि मूविंग टुवर्ड्स 90 डिग्री, तो देन डेल्टा बिकम्स नेगेटिव एंड डेल्टा इज ऑलवेज पॉजिटिव इन पॉजिटिव। डेल्टा जब अब जाए नेगेटिव रेफरेंस के, अगर डेल्टा को आपने नेगेटिव ले लिया, इस तरफ क्या है, डेल्टा नेगेटिव है। सो फॉर द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ डेल्टा विच इज सफिशिएंटली कैपेसिटिव बर्डन, याद रखिए इस तरफ इंडक्टिव बर्डन है और इस तरफ, क्योंकि लैगिंग यहां आ रहा है ये वाला फैक्टर और लीडिंग किधर है, इधर आ रहा है। तो फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ डेल्टा क्या होगा, ये कैपेसिटिव बर्डन होगा। तो कैपेसिटिव बर्डन में आप देखिए थीटा क्या हो रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। यू आर सीइंग दैट थीटा इज पॉजिटिव बिकॉज ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है और ऊपर की तरफ क्या है, पॉजिटिव है। तो आप ये देख रहे हैं कि लगातार ये पॉजिटिव है। सो डेल्टा इज ऑलवेज पॉजिटिव इन द वेरिएशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एंड द फेज एंगल। तो ये थीटा है, तो थीटा आप देख रहे हैं कि ये लगातार पॉजिटिव आएगा। ओके जबकि यहां पे आप रेशियो एरर के रेफरेंस में देखें तो फेज एंगल विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा कैन बी सीन इन द फिगर। तो आप देख रहे हैं कि रेशियो एरर में तो ये नेगेटिव हो जा रहा था, लेकिन यहां पर ये क्या है, पॉजिटिव हो रहा है। क्या है, थीटा एरर, फेज एंगल एरर। फेज एंगल एरर में ये पॉजिटिव हो रहा है। ओके इवन जब डेल्टा पॉजिटिव है तब भी ये पॉजिटिव है, लेकिन डेल्टा जब 90 डिग्री की तरफ पहुंचा तब ये नेगेटिव हो गया, क्या, फेज एंगल एरर। लेकिन जब डेल्टा नेगेटिव की तरफ गया, -90 डिग्री की तरफ अप्रोच कर रहा है या माइनस में है, यानी कि कैपेसिटिव लोडिंग है, तो उस समय में वो लगातार पॉजिटिव है। सो दैट मस्ट बी रिमेंबर्ड। ओके इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइमरी करंट, अगर प्राइमरी करंट चेंज हो रहा है तो क्या होगा, इफ द प्राइमरी वाइंडिंग करंट चेंजेस, यानी कि आईपी में अगर चेंज आएगा तो क्या होगा, आईपी में चेंज में क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग करंट में भी प्रोपोर्शनल चेंज आएगा। अगर आईपी बढ़ा रहे हैं तो आईएस भी बढ़ेगी, और आईएस भी बढ़ेगी तो देन एट द लो वैल्यूज ऑफ आईपी, जब आईपी की वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियसली आईपी आईएस की वैल्यू भी कम होगी। देन करंट आईएम एंड लॉस कंपोनेंट आई, यानी कि उस केस में क्या होगा, जब आपकी आईपी कम है या आईएस कम है तो क्या होगा, आईएम और आई की वैल्यूज दे विल बी ग्रेटर पोर्शन ऑफ द आईपी। ओके तो आईपी वैसे ही कम है, और नो लोड करंट आप जानते हैं कि उसका एक मार्जिन होता है, एक सब्सटेंशियल वैल्यू होनी जरूरी है, क्योंकि वो कोर को मैग्नेटाइज भी करेगा और कोर के लॉसेस को भी बियर करेगा। तो उस केस में क्या होगा, आपके आई नॉट और आई जो है वो कंपेरेबल हो जाएंगे आईपी के। अगर सपोज कीजिए आईपी 10 एम्पियर है और आईएम और आई 3 और 4 एम्पियर हैं, तो ऑटोमेटिकली दे आर कंपेरेबल। अदरवाइज क्या है, आईपी मे बी एट लोड इंस्टेड ऑफ 10 एम्पियर इट मे बी 100 एम्पियर, इट मे बी 60 एम्पियर, तो उसमें क्या है, आईएम और आई नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो जब आईपी खुद ही कम है तो उस केस में आईएम और आई क्या हो जाएंगे, उसके कंपेरेबल। तो उस केस में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन दैट केस, द एरर्स आर ग्रेटर। तो उस केस में एरर्स जो हैं वो ग्रेटर हो जाती हैं, दे बिकम्स मोर। एंड एज द करंट आईपी इंक्रीजेस, तो जैसे आईपी को और फर्दर बढ़ाएंगे तो देयर विल बी इंक्रीज इन आईएस, आईएस भी बढ़ेगा, एंड देन देयर इज ए डिक्रीज इन द रेशियो एंड फेज एंगल। तो उस केस में क्या होगा, रेशियो और फेज एंगल में रिडक्शन आएगा, यानी कि आपने आईपी बढ़ाया है तो आईएस भी बढ़ा, आईएस बढ़ा, और तो क्या होगा, रेशियो और फेज एंगल में रिडक्शन आएगा। और ये जो वेरिएशन आ रहा है, ओके दिस वेरिएशन ऑफ रेशियो एरर एंड फेज एंगल एरर विद द सेकेंडरी वाइंडिंग कैन बी सीन इन द फॉलोइंग फिगर। यू कैन सी दिस, कि आप ये देख रहे हो कि जैसे इंपिडेंस बर्डन बढ़ रहा है तो रेशियो एरर में क्या इंपैक्ट आ रहा है, रेशियो एरर हाई इंपिडेंस की तरफ आप देख रहे हैं कि रेशियो एरर बढ़ रहा है, और लो इंपिडेंस के रेफरेंस में क्या हो रहा है, रेशियो एरर कम हो रहा है। यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग करंट जैसे जैसे बढ़ाया तो आपने देखा कि अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ऑटोमेटिकली रेशियो एरर हाई इंपिडेंस बर्डन में ज़्यादा है और लो इंपिडेंस बर्डन में कम है। लेकिन अगर केवल हाई इंपिडेंस बर्डन का मैं सेकेंडरी करंट के रेफरेंस में वेरिएशन देखें तो क्या हो रहा है, रेशियो एरर धीरे धीरे घट रहा है। ओके और बाद में जाके उसमें मार्जिनल चेंज आ रहा है। और फेज एंगल के बारे में बात करें तो आप अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो हाई इंपिडेंस एरर में क्या है, फेज एंगल एरर ज़्यादा होगी विस लो इंपिडेंस बर्डन। लेकिन वेरिएशन देखिए कि फेज एंगल जैसे जैसे आप सेकेंडरी करंट को बढ़ाएंगे आईएस को, तो ये जो हाई इंपिडेंस बर्डन में क्या होगा, फेज एंगल एरर धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा, फेज एंगल विल बी रिड्यूस्ड। ओके एंड लो इंपिडेंस बर्डन में भी रिड्यूस होगा बट वो इतना शार्प नहीं होगा। So this is what show the variations, okay,
and this beside that effect of change in the secondary winding burden, अगर secondary winding burden में change है तो उस पर क्या impact आएगा? In an increase in the secondary winding circuit burden, अगर burden को बढ़ा दिया, burden क्या है? वोल्ट एम्पियर लोडिंग, जो कि आपने secondary पर लगाई है, तो उससे क्या होगा? impedance, an increase in the secondary winding circuit burden, impedance means that increase in the volt ampere rating, okay, because it's a volt ampere loading. This necessitates इससे क्या होता है? It leads to the increase in the secondary winding induced voltage. तो वो क्या है? secondary winding induced voltage को ES को increase कर देगा. It will lead to the increase in ES अगर आप secondary winding का burden को बढ़ा रहे हैं, okay, क्योंकि ES ही उसको feed करेगा, okay. So which can be generated, इसको आपको जनरेट भी करना होगा. ES कहाँ से आएगा? You have to give, you have to back it up. तो इसको बैकअप करने के लिए क्या क्या जरूरत होगी? विच कैन बी जनरेटेड बाय एन इंक्रीज इन फ्लक्स. तो ये आप केवल इंक्रीज इन फ्लक्स या फ्लक्स डेंसिटी से कर सकते हैं, यानी कि फाई और बी की सपोर्ट से ही आप ES को बढ़ा सकते हैं. और ES आपको बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि आपने बर्डन बढ़ा दिया. बर्डन को फीड करना पड़ेगा, उसके लिए ES की जरूरत पड़ेगी. देयरफॉर बोथ मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट IM एंड लॉस कंपोनेंट IE दे आर आल्सो इंक्रीज्ड. तो ये सपोर्ट कैसे होंगे? फाई और बी. फाई और बी को अगर आपको इंक्रीज करना है, मींस इट रिक्वायर्स इंक्रीज इन IM एंड IE. उसके लिए आपको IM और IE को इंक्रीज करना होगा, ओके. thus it is expected that the error will be increased with the increase in secondary winding burden. अगर ये IM और IE बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होगा? एरर इंक्रीज होगा. मीनिंग देयर बाय अगर बर्डन बढ़ाएंगे तो एरर भी इंक्रीज कर जाएगा. दैट इज व्हाट एरर विल आल्सो इंक्रीज. So due to that error will also increase. Now the last factor which is basically इस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, effect of change in winding. आप यहाँ पर भी वही वेरिएशन देख रहे हैं फेज एंगल का और रेशियो एरर का. Now the last factor which is basically what that is frequency. Frequency के केस में क्या होता है? The effect of increase of frequency will result in the proportional decrease in flux and density. अगर frequency बढ़ेगी तो फ्लक्स आपका ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा, ओके. thus in general the effect of increase of frequency is similar to that produced by the that is decrease in the impedance of the secondary winding. तो जो secondary winding को reduce करने से impact आता है वही frequency के increase करने से आता है. बट ट्रांसफॉर्मर इस तरीके से एज्यूम किया जाता है कि आप उनको डिजाइंड फ्रीक्वेंसी पर ही ऑपरेट करेंगे. मीनिंग देयर बाय यूजुअली इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू शुड नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी. सो दिस वाज रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, particularly current transformer. We will continue our discussion on the same topic in next lecture also. Thank you very much.